Hello, Virgo people. Welcome to my love reading for you guys. That is the Virgo zodiac sign. Well, it's a love reading based on love messages. That is, it means I love you because it specifies the reason of your love or reason behind your love, why you love your partner or why your partner loves you. In case if you don't know the reason why your partner loves you, because some people are so shy, so introvert, they don't express their feelings properly, they don't have that ability to express their feelings properly. So in that case, this reading will certainly help you to know your partner's emotions, uh, your partner's feelings. So this cards, I'll use this chits, this cards, it's love messages basically, deck of love messages. I've shuffled this card. The second part would be of the no contact zone. That is why you're facing this no contact zone right now. What is the problem you're facing in your love life and why you're facing such problems and how can you solve those problems? It will be in the form of angelic guidance from the universe. I'll use 3 oracle decks, angelic guidance, and to help you out in solving your problems of your respective love lives. So, this is for the Virgo people. Let's start with your reading. I'll pick up 6 love messages from here. Okay. Card number 1, card number 2, card number 3, card number 4, card number 5, and card number 6. Okay, I hope you can see that. Okay, let's see. It's written in very simple English language, so there is no need to further explain it. I'll just read out the messages to you and see why you love your partner or your partner loves you. It could be from either side, so take it as it resonates with you. Just flip the messages or flip the energies. Okay, so let's start. Virgo people, I love you because you hold me like you never want me to go. So sweet. This is how the card looks. I love you because you hold me like you never want me to go. The first message of the first card. The second card says, I love you because you are the light in my life. I love you because you are the light in my life. The third card says, I love you because you care about how I feel. I love you because you care about how I feel. Okay. The fourth card says, I love you because you laugh at my jokes even when they are not funny. Okay. You laugh at my jokes even when they are not funny. This is the message of the fourth card. The fifth card says, your nose is the cutest in the world. I love you because your nose is the cutest in the world. The sixth and the last card says, I love you because you know how to put me first. I love you because you know how to put me first. Okay, so this was all the 6 messages from the I love you cards. Okay, now I'll move on to the no contact zone. Let's see the Virgos who are facing a troublesome phase in their love life, having a no contact zone. It could be in a married relationship, it could be in a non-married relationship, it could be in a live-in relationship. Okay, so let's see. Then it will be in the form of angelic guidance. That is the guidance from the universe and the angels.
where you need to solve your particular problem, that area will be highlighted. You can know why you're facing your problem. You must be knowing already, but it's for your guidance, how you can help to overcome that problem. So it will be in the form of guidance from the universe and the angels and fairies, okay? Universe, please guide the Virgo people. The problem that they're facing in their love life, please guide them and help them overcome that. Okay, card number 1. Card number 2 from this deck, Fairies Oracle deck. Universe, please guide the Virgo people and their partner in order to overcome their problems that they're facing in their love life. Please help them solve their problems. Please show them the light, the guidance, what they need to know and what they need to learn in order to improve their love life. Okay. And the third deck is the Romance Angels Oracle deck. So one card will be picked up from this deck. That is also in the form of guidance. Universe, please guide the Virgo people and their partners. Please help them solve the problems of their love life, respective love lives. Please guide them, angels, romance angels. Please help the Virgo people. Okay. The first card, angelic card, says compassion, self-care, simplification, beauty. It could be possible that you are facing some kind of lack of compassion in your relationship. प्यार में compassion, kindness, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. एक्सप्रेस करना अपने पार्टनर को थ्रू योर कंपैशन, कंपैशनेट जेस्चर, काइंड जेस्चर, ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और सिर्फ लव लाइफ में क्यों, कोई भी इंसान के प्रति ज़रूरी है, और लव लाइफ में तो ख़ास तौर पे और ज़्यादा ज़रूरी है इसका, इज़न्ट इट? तो हो सकता है आपका बॉन्ड बहुत कोल्ड हो चुका, कोल्डनेस आ चुका उसमें, आप लोग शेयर नहीं करते हैं इमोशंस उतने डीपली एक दूसरे के साथ, वार्मथ नहीं है, थोड़ा कोल्ड बन चुका रिलेशनशिप. इसीलिए शायद वो रिलेशनशिप आज नो कॉन्टैक्ट जोन में है, जहाँ पे बातचीत एकदम ही बंद है, या फिर थोड़ी बहुत बातचीत होती है, आप लोग मिलते भी नहीं हैं एक दूसरे से, फ़ोन पे भी शायद बातें उतना नहीं करते हैं, या करते होंगे तो बहुत कम करते होंगे. लाइक वेरी हार्ड हार्टेड काइंड ऑफ नेचर जैसे बिल्डअप हो गया आप दोनों के बीच, आप दोनों के बॉन्ड में, आप दोनों के रिलेशनशिप में. सो कंपैशन के लिए कहा जा रहा है, और थोड़ा सिंपल कीजिए अपने बॉन्ड को, अपने लाइफ को सिंपल कीजिए, ब्यूटिफाई कीजिए. कंपैशन, काइंडनेस रहने से लाइफ या रिलेशनशिप ऑब्वियसली ब्यूटीफुल बनेगा, यही कहा जा रहा है. दिस इज़ वॉट इज़ बीइंग सेड in the form of guidance to you guys, Virgo people, and for your partners. So pay heed to this. सुनिए इसे, मानिए इसे, और अपने जीवन में अप्लाई कीजिए. देखिए कैसे फिर इमोशंस भर जाएगा आपके लाइफ में, वार्मथ भर जाएगा, जो भी कोल्डनेस है वो हट जाएगा. कंपैशन से पेश आइए अपने पार्टनर के साथ, काइंडनेस से पेश आइए, रूड नहीं, कोल्ड वाइब्स नहीं,
तभी तो जाके नो कॉन्टैक्ट में पहुंचा होगा आपका रिलेशनशिप, इज़न्ट इट? सो डेफिनेटली आप इससे बाहर निकलना चाहेंगे, सुधार लाना चाहेंगे, तो ये सब उपाय है, गाइडेंस है, पॉइंट्स है, जिससे या जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। यूनिवर्स का ये कहना है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कार्ड। सॉलिट्यूड। थिंक ऑफ बीइंग अलोन as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. कभी कभी होता है लाइफ बहुत कैओटिक हो जाता है, प्यार पे असर पड़ता है इसका, या फिर लव बॉन्ड रिलेशनशिप में बहुत गहरा असर पड़ता है इसका। तो इसे हम लोग को ही सुधारना पड़ेगा, आप लोग को ही सुधारना पड़ेगा। एक जगह शांत होकर बैठिए, दोनों पार्टनर अलग अलग हैं तो अलग अलग जगह सिर्फ अपने आप को लेके बैठिए, दिमाग को शांत कीजिए, मन को शांत कीजिए, बातें कीजिए अपने आप से, कहाँ आप गलती किए हैं, किसने गलती किया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर गलती की है तो अपने अंदर झांक के देखिए कि आप अपने साइड से कैसे बेहतर कर सकते हैं। कोई सलाह देना चाहते हो अपने पार्टनर को तो ईगो हटा के सलाह दीजिए। प्यार में ईगो नहीं होता है, और अगर ईगो हुआ तो प्यार तो गया, प्यार ख़त्म, फिर प्यार टिक नहीं पाएगा। ईगो रिलेशनशिप, ईगो बेस्ड रिलेशनशिप अगर होगा तो, isn't it? I hope you understand that, Virgo people. So you're being asked to be alone, spend some time alone, me time जिसे हम लोग कहते हैं, me time, सिर्फ अपने लिए टाइम निकालिए और सोचिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। हम लोग भाग दौड़ में इतने बिजी होते हैं लाइफ में कि रिलेशनशिप कहाँ से कहाँ चला जाता है, नष्ट हो जाता है, हम लोग सोचते ही नहीं है। जब एकदम एंड स्टेज पे पहुँच जाता है तब जाके हम लोग को ये ख्याल आता है, अरे मैंने गलती कर दिया। होता है ना कभी कभी आप लोगों के साथ भी? तो देखिए, बैठिए एक जगह, मन को शांत कीजिए, दिमाग को शांत कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने अंदर झांकिए, देखिए आपके तरफ से क्या गलती हुई है, उसे सुधारिए। अपने पार्टनर को सलाह दीजिए, विथ कंपैशन एंड काइंडनेस सलाह दीजिए। यहाँ पे जो कहा गया है, रूडली मत बोलिए। कैन यू सी हाउ दिस कार्ड्स रिलेट टू ईच अदर? दीज आर ऑल इन द फॉर्म ऑफ गाइडेंस। ये आपको हेल्प करने के लिए ही है, ये मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। काइंडनेस के प्रति, काइंडनेस के द्वारा समझाइए अपने पार्टनर को। अगर कुछ समझाना हो, अगर उसकी गलती हो या उसका गलती हो, कंपैशन के प्रति समझाइए अपने पार्टनर को और ब्यूटीफुल कीजिए अपने लव लाइफ को। तभी तो ब्यूटीफुल होगा बॉन्ड, तभी ब्यूटीफुल होगा, तभी डीपर होगा, तभी स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसीलिए अपने ऊपर काम कीजिए, कुछ टाइम अपने लिए रखिए सारा दिन में, क्योंकि मी टाइम बहुत ज़रूरी है। एनालाइज कीजिए आपने क्या किया है, किस वजह से, किस कारण आपका रिलेशनशिप आज इस हाल में पहुंचा है, जहाँ पे बात नहीं हो रही है ठीक से एक दूसरे से, रिलेशनशिप काइंड ऑफ बिगड़ गया, उसे सुधारिए। बिल्कुल सुधार सकते हैं आप, कोशिश कीजिए, ज़रूर सुधर जाएगा। लेट्स सी व्हाट रोमांस एंजल्स हैव टू से। फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। किसी किसी वर्गों के लिए डेफिनेटली ये भी रीज़न, ये भी फैक्टर हो सकता है। जैसा मैंने कहा, हर एक वर्गोस बहुत हैं, राइट? वर्गोस ज़ोडिएक साइन बहुत है, तो सब वर्गोस का स्टोरी एक जैसा नहीं होगा। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। कुछ वर्गों का स्टोरी कुछ होगा, कुछ और ग्रुप ऑफ वर्गोस का कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड स्टोरी होगा। तो ये उनके लिए है जिनको फाइनेंस रिलेटेड या करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड इश्यूज फेस करना पड़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट लव लाइफ में पड़ रहा है। इसीलिए ये कार्ड आया है।
फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। हो सकता है आपका लव लाइफ डिमांड्स जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ योर सैलरी और बिकॉज ऑफ द पेमेंट दैट यू आर गेटिंग ऑन अ मंथली बेसिस। हाईली पॉसिबल, वेदर इट्स थ्रू अ जॉब, वेदर इट्स थ्रू योर बिजनेस, इट कुड बी एनीथिंग। आप बेहतर जानते हैं मेरे से कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, किस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रही हूँ। तो अगर ये प्रॉब्लम है फाइनेंसेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड, तो इसके ऊपर काम कीजिए। देखिए आप कैसे सुधार ला सकते हैं। एंजल्स का कहना है, उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया कि फाइनेंसेस से आपका लव लाइफ रिलेशनशिप बिगड़ रहा है। हो सकता है आपके पत्नी के, आपके लवर के कुछ डिमांड्स हो जो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी, यू नो। तो एक साथ बैठिए, दोनों मिलके बातें कीजिए, एडजस्ट कीजिए, उन्हें समझाइए फिर कि थोड़ा और वेट करें जब तक आपका अच्छा कोई बेटर अपॉर्चुनिटी जॉब में, बिजनेस में, करियर में ना मिल जाए। यू नो, टॉक टू ईच अदर, बी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स ईच अदर, डोंट बी रूड टू ईच अदर। रूडनेस से काम नहीं चलेगा, आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, काइंडनेस से पेश आना पड़ेगा, कंपैशन से पेश आना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो Virgo people, hope this reading helps you and it guides you to improve your love life. Wish you all the very best for your love life. See you in my next reading. This reading is for the month of September. See you in my next reading. Till then, take care. Bye bye. See you soon.